صاحب میرا ایک اور بڑا بنیادی سوال ہے. دیکھیں جو نایاب 78 رانا سعید صاحب مرحوم کی ورائٹی تھی، وہ جب انہوں نے مارکیٹ میں وہ ورائٹی دے دی تو وہ ورائٹی 16 سال وہ ورائٹی مارکیٹ میں چلی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پیچھے نایاب تھا. نایاب باقاعدگی کے ساتھ بیسک سیڈ اور سرٹیفائیڈ سیڈ تیار کر کے پنجاب سیڈ کارپوریشن کو اور باقی جو سیڈ سے ریلیٹڈ ادارے تھے ان کو دے رہا تھا تاکہ اس کی پیورٹی اور اس کی اوریجنیلٹی برقرار رہے. لیکن آپ نے تو کمپنیز کو سیڈ دے دیا، اب تو یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیسے پلے کرتے ہیں. کیا وہ جو آپ کی کیم 3 ہے، کیم جو 2 ہے، اس کی جو اوریجنل جو شناخت ہے یا جو اس کی خصوصیات ہیں پودے کی، بی ٹی جین لیول کی، اس کو وہ مینٹین کر پائیں گے یا کیم اس کو اس میں کیا رول ادا کر رہا ہے؟ آپ یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ کویشچن کیا کہ جو سائنٹسٹ کوئی چیز بناتا ہے، کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتا ہے، تو اس سائنٹسٹ کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو آگے فیلڈ کے اندر مینٹین بھی کرے، اس کی مانیٹرنگ کرنی ہے، اس کی ریگولر ایویلیویشن چاہیے، اسٹیورڈشپ جس کو کہتے ہیں وہ ہو. یعنی کہ آپ کی ورائٹی کہیں لگی ہوئی ہے، اس میں کیا پرابلم آ رہے ہیں، وہ اس کو وزٹ کرے، اس کی جا کے سیمپل لے کے آئے، وہ ٹیسٹ کرے کہ بی ٹی کتنے پرسنٹ میں ایکسپریس ہو رہی ہے اور کتنی اس کی پرسنٹیج ہے. تو یہ ساری مانیٹرنگ کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا. میری ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ پروجیکٹ بن گیا تھا. ہم نے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ سبمٹ کیا منسٹری آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر اینڈ ریسرچ میں، وہ لیکن وہ پروجیکٹ ابھی تک نہیں ہوا. گورنمنٹ نے ہمیں اس کے اندر کوئی فنڈنگ نہیں کی تاکہ ہم یہ کام جو ہے یہ پروجیکٹ بن گیا، سبمٹ ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہو گئے. اور یہی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک وہ سائنسدان جس نے ایک پروڈکٹ پہ کام کیا ہے شروع سے لے کے آخر تک، اور اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانچ کیا ہے، پروڈکٹ مارکیٹ میں چل رہا ہے، اور اس پروڈکٹ کو اب جس بیک اپ کی ضرورت ہے اس سائنٹسٹ کی طرف سے، وہ سائنٹسٹ ریٹائر ہو گئے ہیں. حالانکہ دنیا کا اصول تو یہی ہم نے سنا ہے کہ سائنٹسٹ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، اور سائنٹسٹ ریٹائر ہو بھی جائے تو وہ اپنے کام سے علیحدہ نہیں ہوتا. ان کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ بھی اپنے اسی ادارے کے ساتھ منسلک رہیں اور اس کام کو جاری رکھیں، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو پیچھے ٹیم ہے ان کو اسی طرح سے گائیڈ کریں، اور ٹیم بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ اس پروڈکٹ کی کو پوری اسٹیورڈشپ کے ساتھ لے کے مارکیٹ میں چلے. پھر ہی اس پروڈکٹ کی لائف سائیکل بڑھے گا نا جی. اس پروڈکٹ کا لائف سائیکل پھر ہی بڑھے گا، پھر ہی صحیح طور پہ اس کا بینیفٹ مل سکے گا. اگر فرض کرو وہ سسٹم نہیں ہے تو پھر تو میں یہی سمجھوں گا کہ اب بی ٹی کاٹن یہ جو ہے یہ جلدی اپنی لائف پوری کر جائے گی، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو فردر کیسے کنٹینیو رہنا چاہیے اس پروجیکٹ کو، یا اور کس طرح بی ٹی کے اوپر کام کرنا چاہیے، تو وہ بھی بتا دیں. اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک اسی سے ریلیٹڈ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے، میں آپ سے اس کے بارے میں سننا چاہوں گا، سامعین بھی جاننا چاہیں گے کہ فرض کرو موسمی تبدیلیاں بہت ہو رہی ہیں جس کا بہت زیادہ امپیکٹ پاکستان کی ایگریکلچر پہ بھی آ رہا ہے، اور خاص کر کاٹن کراپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے. کبھی ڈراؤٹ سے کاٹن فیل ہو رہی ہے، کبھی ہائی رین فال سے ہو رہی ہے. تو کیوں نہ ہم کوئی جینیٹیکلی ایسا پودا نہیں ڈیولپ کر سکتے جس کی ہائٹ جو ہے کوئی 2-2.5 فیٹ کے قریب ہائٹ ہو، جس کو کوئی 15-20 ٹینڈے لگیں اور 120 دن کی یا 100 دن کی کراپ ہو. اس کو آپ بیشک مارچ میں لگائیں اور ود ان 100 ڈیز آپ اس کو ہارویسٹ کر لیں. اس کا اوور آل کراپ میچورٹی ڈیوریشن آپ کم کر دیں، اور آپ پودوں کی تعداد جو ہے فی ایکڑ 30,000 کر دیں. میں تو ایز اے لے مین کام کر رہا ہوں نا، کہ ہم پودوں کی تعداد 15-16 ہزار کی بجائے ہم 30,000 پودوں کی تعداد کر دیتے ہیں، 12-15 ٹینڈے پر پلانٹ کر دیتے ہیں، اور پودے کی ہائٹ کر دیتے ہیں 2-2.5 فٹ کر دیتے ہیں، اور جس سے
कीड़ों को कंट्रोल करने में भी आसानी हो जाएगी, और जो मौसम की शिद्दत है वो उससे भी उसकी बचत, उसको एस्केप मिल जाएगा। जब ओवरऑल क्रॉप ड्यूरेशन कम हो जाएगा तो बहुत सारे जो नेचुरल फैक्टर हैं उससे भी उसको एस्केप मिल जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये ऐन मुमकिन है और ये पॉसिबल है कि हम आइंदा ऐसी क्रॉप डेवलप करें जो कि मौसमी हालात जिस तरह से तब्दील हो रहे हैं इसको कोप कर सके। इसके लिए जेनेटिकली मॉडिफिकेशन भी की जा सकती है, इसके लिए जर्म प्लाज्म जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है उस पर भी काम किया जा सकता है। लेकिन मैं इस सिलसिले में काम करने के लिए तैयार हूँ, और मैं अगर मुझे मौका मिले तो इस किस्म के प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए तैयार हूँ कि मैं अब भी अपने आप को अगर खुशी महसूस करता हूँ तो उस वक्त करता हूँ जब कोई मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए, जो मैं रिसर्च करूँ और जो मैं आइडिया सोचूँ वो कामयाब हो जाए। और यही वो कामयाबी, यही वो तरीका है कि ये काम कंटिन्यू रहे। और एक रिटायर्ड बंदा भी, जो कि जिसको रिटायर्ड नहीं कहना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए कि एक अपना जो हमने एज है वो पूरी करने के बाद भी वो इस पे काम करता रहे। आई एम रेडी फॉर इट। कोई नहीं, रिटायर्ड तो नहीं है आप, फ्लेक्सिबल टाइम की रेंज में है, ठीक है ना जी, जी। तो ये बड़ी खुशी की बात है डॉक्टर साहब, और साफ ज़ाहिर है ये प्रोग्राम जब ये सोशल मीडिया में और जाएगा तो बहुत सारे दोस्त इसको सुनेंगे, तो देखते हैं कि क्या रिस्पांस आता है। और ये आपकी बात से डॉक्टर साहब वाकई बड़ी खुशी हुई कि अगर आप भी काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो दैट इज़ ए वेरी गुड। और साइंटिस्ट बेसिकली ऐसे ही होता है और ऐसे ही एक साइंटिस्ट को होना चाहिए। ख़ासकर पाकिस्तान में तो जो अगर हम साइंस की बात करें, साइंटिस्ट की बात करें, तो इसमें हमारे पास बहुत अच्छी स्टोरीज़ बहुत कम हैं। तो आप जैसे दोस्तों के लिए तो पूरा मौका होना चाहिए कि आप पूरी ज़िंदगी उस काम में लगा दें, और फिर आपके पास तो बड़ी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, और ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं कि बंदा वाकई सुन के हैरान होता है। सिर्फ ये है कि चूँकि आप उस तरह से नहीं हैं एक्सपोज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और बाकी पाकिस्तान को जिस तरह से कि एक साइंटिस्ट को होना चाहिए। तो मैं जहाँ तक मुझे तो डॉक्टर साहब ये भी पता चला कि जो आपने बीटी कॉटन जहाँ पे डेवलप किया, ये पाकिस्तान से बाहर भी कुछ मुल्कों में मतलब रजिस्टर हो गई है, और कुछ मुल्क इसको सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात, ये बड़ी खुशी की बात है। और पाकिस्तान का ये पहला बायो प्रोडक्ट है जो कि अफ्रीकन कंट्री में हमने 12 कंट्रीज़ के दौरे किए। हम मुख्तलिफ मुल्कों में गए, वहाँ जाके अपनी ये टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई, तो उन्होंने एग्रीमेंट किए और अब उन कंट्री में से वो कल्टीवेशन इसकी करने के लिए तैयार हैं, जो कि पाकिस्तान में बीटी डेवलप हुई और उनके कंट्री में वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये बहुत ही प्राइड की बात है कि ये फर्स्ट बायो प्रोडक्ट है जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है और इंटरनेशनली ग्रो हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। दैट इज़ द रियल अचीवमेंट डॉक्टर साहब, और आपसे ये बातें सुन के वाकई बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब अब तो और भी है कि अब मैं देखता हूँ कि ऑर्गेनिक कॉटन पे बात होती है कि पाकिस्तान में ऑर्गेनिक कॉटन को भी डेवलप करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, ठीक है ना जी। चूँकि सुनने में आता है जी वो ग्लोबली इसकी डिमांड है ऑर्गेनिक कॉटन की, लेकिन मतलब है कि ये जो बीटी कॉटन है, ऑर्गेनिक कॉटन है, जो हमारी कन्वेंशनल कॉटन है, आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आने वाले सालों में इन तीनों कॉटन्स को, जो हमारी कन्वेंशनल कॉटन है, बीटी कॉटन है और फिर ऑर्गेनिक कॉटन है? क्योंकि मुझे नहीं आइडिया कि और कौन सा अदारा है जो बीटी कॉटन पे काम कर रहा है। ठीक है, वो क्रॉसिंग ब्रीडिंग के साथ वैराइटीज़ डेवलप करना वो तो प्राइवेट कंपनीज भी कर रही हैं, गवर्नमेंट के अदारे भी कर रहे हैं, लेकिन असल में तो वो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद हम कॉटन में कहाँ खड़े होंगे और हम कॉटन को कैसे देख रहे होंगे। तो इस हवाले से मतलब है कि आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बीटी कॉटन जो थी, जब हमने ये डेवलप की है तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फार्मर की तरफ से वो कम हुई।
यानी अब फार्मर्स को उतने स्प्रे नहीं करने पड़ते जितने बीटी कॉटन को नॉन कन्वेंशनल। वो तो जी मुझे याद है कि अमेरिकन बोलवर्म कंट्रोल ही नहीं होता था, नहीं होता था, 5-5 6-6 7-7 स्प्रे तो उसके लिए करने पड़ते थे, और उसका जो डैमेज है वो भी डायरेक्ट यील्ड को इम्पैक्ट करता था। बिल्कुल, उससे इंसेक्ट कंट्रोल हुआ है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, ना टेक्नोलॉजी फार्मर्स की लेवल पे चेंज हुई है कि फार्मर ने उसी तरह का सीड लेना है जैसे वो कन्वेंशन का लेता था, बीटी का सीड लेना है, उसको उसी तरह ग्रो करना है, उसी तरह पानी देना है, उसी तरह फर्टिलाइजर देने हैं, कोई उसमें तब्दीली नहीं आई। तो जब आप ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो उसमें जो कल्टीवेशन के तरीक़ाकार हैं वो चेंज होंगे, उसमें कॉस्ट बढ़ेगी, और मैं ये नहीं सोच रहा कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी हमारी कन्वेंशनल से या बीटी से, और फिर वो मार्केट में जब अवेलेबल होगी तो चंद लोग ही जो है वो अफोर्ड कर सकेंगे उस काटन को पहनने में या उसको ख़रीदने में। दूसरे आम कंट्रीज जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि लेस डेवलप्ड कंट्री हैं, वो उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकें क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये मुमकिन है वैसे कि आप बना लें ऑर्गेनिक कॉटन, लेकिन साथ ये भी सोचें कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपको इसका जो फ़ायदा है वो उतना नहीं होगा जितना हम सोचते हैं। ये जो अभी बीटी कॉटन चल रही है ये कितने साल और निकालेगी, आप क्या समझते हैं? और मैं समझता हूँ अगर इसकी स्टूवर्डशिप और उसके बैकअप पे इंस्टीट्यूट रहें, और ये अभी वैरायटीज़ जो इस वक्त CK-C1 CK-C3 तक चल रही हैं, 5 तक चल रही हैं, इसके बाद हम वैरायटी रिप्लेस करेंगे जो कि एनवायरनमेंट को भी सस्टेन करें और बीटी भी उसके अंदर मौजूद हो, उसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट भी मौजूद हो। तो वो एक नई वैरायटीज़ की सीरीज़ चलेगी जो कि हर किस्म का एनवायरनमेंट बर्दाश्त करेगी, ख़ास तौर पे मल्टीपल स्ट्रेस टॉलरेंस होगी उसमें कि आप वैरायटी ग्रो करेंगे तो चाहे उसको ड्रॉट आ जाए तब भी नहीं वो मरेगी, चाहे इसमें रेन हो जाए तब भी नहीं मरेगी, चाहे इसमें फ्लडिंग हो जाए तब भी नहीं वो मरेगी। ऐसी वैरायटीज मतलब ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं कभी कभी जाने का इत्तेफाक होता था कैंप के अंदर, तो मैं देखता था आपके पास तो ऐसा मटेरियल भी था जो वाइट फ्लाई को बहुत अच्छा टॉलरेंट था, वाइट फ्लाई उस पर डेवलप नहीं होती थी, हत्ता कि जेसन नहीं होता था, थ्रिप्स नहीं होता था। मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ कि फिर आप कोई पिंक बॉलवर्म के हवाले से भी कोई काम कर रहे थे, कि फिर वायरस के हवाले से भी आप के पास एक कोई प्रोजेक्ट था मेरे ख्याल में कि जेनेटिकली कॉटन प्लांट को मॉडिफाई कर दिया जाए कि कोई वायरस उस पर ग्रो ना कर सके। वो प्रोजेक्ट वहीं पे ख़त्म हो गए हैं या कोई अभी चल रहे हैं? ये सपोर्टिंग प्रोजेक्ट थे कि हमारा अल्टीमेट एम था कि दी बेस्ट कॉटन वैरायटी प्रोड्यूस करना जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। और मुख्तलिफ एस्पेक्ट में ये प्रोजेक्ट चल रहे थे, जिसमें वाइट फ्लाई के अगेंस्ट प्रोजेक्ट था, जिसमें उसकी फाइबर लेंथ पे था, उसकी कलर्ड कॉटन पे था। हमने एक ऐसी कॉटन बना ली हुई है जो कि ज़्यादा वाइट है देन दी कन्वेंशन पेरेंट वन। अच्छा। और ये जो ज़्यादा वाइट कॉटन है, स्नो वाइट, ये काम आती है कुछ प्रोडक्ट बनाने में और हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से वो भी कॉटन हमने बना ली। तो हम साइड पे बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे थे। जब प्रोजेक्ट वो कमर्शियल स्टेज पे पहुंचता था तो फिर हम उसकी कमर्शलाइजेशन की तरफ ले जाते थे। लेकिन जो मेन मेरे आने का मकसद है, जो आगे ज़रूरत है पाकिस्तान को, वो है एनवायरनमेंट टॉलरेंस, जो स्ट्रेस टॉलरेंस है, मल्टीपल स्ट्रेस टॉलरेंस वैरायटी।